اب ہم فائنل اپنے اسپیکٹ پہ آتے ہیں اینڈ دیٹ از ایموشنل اور بیہیویئرل اسپیکٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ایموشنل یا بیہیویئرل جو ہے یہ آپ نے اس کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نہیں نکالنا آپ کو. اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسک ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ جب آپ کو آئے گی نا تو آپ یو گن اسٹارٹ لیونگ ایٹ اندر لیول. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ یہ میری کوئی ایک اور عمل مجھے نہیں بتانے لگی، یہ میری صرف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ایک بہتر انسان کیسے بنوں اس کے لیے. تو یہ ایک سب سے مشکل ٹاپک ہے کہ ایموشنل ٹریننگ ان رمضان. نفس ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ نفس، آپ یاد رکھیے گا یہ سب سے اہم بات ہے. تو نفس جو ہے نا، نفس از اسکلڈ ایٹ اسپرچل پرفارمنسز. نفس اسپرچل پرفارمنس جب ہم کرتے ہیں نا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ اذکار کر رہی ہوں بیٹھ کے، بہت اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو یہ جو نفس ہے نا یہ اسپرچل پریکٹسز میں ماشاءاللہ بہت وہ ہے، اسکلڈ ہے. نفس اس بارے میں آپ کو کبھی نہیں روکے گا. نفس نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سب کچھ آپ کو کہے گا کہ ہاں کرو، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی خاصا روکے گا نہیں. لیکن اندر سے نا، اندر سے نفس تنگ ہوتا ہے اپنی خواہشات نہ پورا ہونے پر. تو رمضان صرف جسم کو کھانے سے روکنے اور عبادت کو بڑھا دینے کا نام نہیں ہے. اور یوزلی ہم کیسا رمضان گزارتے ہیں؟ ایسا ہی نا کہ جسم کو کھانے سے روکا اور عبادت بڑھا دی، اور ابھی تک کا ہمارا لیکچر تھا بھی یہی، ایسے ہی ہے. تو یہ یوزل ہماری پریکٹس ہے. لیکن رمضان از ناٹ اباؤٹ اسکیجول اینڈ گولز alone، کہ رمضان میں صرف آپ اسکیجول بنا لیں، ٹائم ٹیبل لکھ لیں، گولز بنا لیں، یہی نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ نوٹسنگ واٹ دا نفس از افریڈ آف لوزنگ. نفس کس چیز کو کھونے سے ڈرتا ہے، کب انکمفرٹیبل ہوتا ہے، یہ جاننا. جب کھانا، جو کہ ہمارا بگیسٹ کمفرٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ ایموشنل کمفرٹ ایٹنگ کرتے ہیں. تو اور آج کل تو جب دنیا میں اتنے چینلز اور ٹی وی اور سوشل میڈیا اور ہر کوئی کوکنگ 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 اور اسی کے ذریعے سے کمانا اور وہی چینلز اور وہی لذتیں اور وہی مزے لینے پہ لگا ہوا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا کمفرٹ زون ہے یہ کہ ہم کھاتے ہیں. تو جب کھانا جو ہمارا بگیسٹ کمفرٹ ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا بھائی اب صبح رات کے پہر اٹھو، سحری میں اٹھ کے کرو، اور اس کے بعد اب تم نہیں کھاؤ گے رات مغرب تک. تو کھانا ریموو ہو گیا. تو یہ نفس کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. کھانا، جب آپ کچھ بھی چڑچڑے ہوں، کچھ بھی مسئلہ ہو، تو آپ بھاگ کے کھانے کے پاس جاتے ہیں. تو جب روزہ آتا ہے تو اللہ اس ڈسٹریکشن کو ریموو کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو اس ڈسٹریکشن سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں کہ اب تم کھانے کے پاس تو نہیں جا سکتے. پھر کیا ہے؟ تو نفس تنگ ہوتا ہے. پھر دوسری چیز کیا؟ پھر نیند کم ہوتی ہے. نیند یعنی آف کورس آپ ایسے ٹائم پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں جیسے اب جو آپ کی یوزول روٹین میں نہیں ہے. آپ کو سحری میں اٹھنے کے لیے جلدی سونا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کی یوزول روٹین میں نہیں ہے. دن بھر بھی اگر آپ کام ورکنگ کر رہے ہیں، آپ ہلکی سی نیپ لینے کا موقع ملا آپ کو، اس طریقے سے آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی. تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی نفس کو بہت مرغوب ہے، زیادہ سونا، بڑا ریلیکس ہو کے اور تان کے. تو اس سے بھی نیند جب لے لی جاتی ہے اور اپنی مرضی کی ٹائمنگ پہ ہم نہیں سو پا رہے ہوتے، تو اس سے بھی نفس کو کیا ہوتا ہے؟ نفس اریٹیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، نفس چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اور پھر ایک اور بڑی چیز، تیسری چیز، وہ کیا کہ پلگ ان ایڈکشن. پلگ ان ایڈکشن یعنی ہم جو سوشل میڈیا سے ہر وقت پلگ ہیں، ہم اپنے موبائلز، اپنے یہ ہماری جو سکرینز ہیں، ہماری جو لیپ ٹاپس ہیں، ہمارا جو یہ دنیا پوری آن لائن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، یہ ہماری پلگ ان ایڈکشن ہے. ہم ایڈکٹڈ ہیں اس سے. کتنے لائکس، کتنی چیزیں، کتنے لوگوں نے فیڈ کیا، میں نے کیا فیڈ کیا، اچھا میں یہ پڑھ لوں، یہ کھول کے دیکھ لوں، نیا کیا آیا ہے، رسپانس کیا ہے، اس نے کیا اس کا کامنٹ کیا، یہ تھریڈ فالو کر لوں، یہ دیکھ لوں. مطلب اب تو نام بھی نہیں گنے جاتے کہ کتنی کوئی ایک آدھ چیز ہو تو کوئی بندہ کہتا ہے 2 4 6. نہیں جی، ہر آئے دن کوئی نیا پلیٹ فارم ہے جس پہ کہتے ہیں اب اس پہ سارے آ جاؤ، اب اس پہ آ جاؤ، تو پچھلے 10 میں اور ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری ایڈکشن بن گئی ہے. تو جو لوگ الحمدللہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نیت سے داخل ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، تو وہ پھر
प्लग इन एडिक्शन को खत्म करते हैं। तो ऐसे में भी जब नफ्स को खाना मिट गया, नींद कम हो गई और वो उसकी पसंदीदा चीज नींद भी नहीं मिल रही। अब तीसरी चीज हमारी क्या है, हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि हमारी जब कोई बैड टाइम आ रहा होता है, हमारे अंदर से कोई हमारी अनकंफर्टेबल हैबिट सरफेस कर रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जाके फौरन मोबाइल पे बैठ जाते हैं। तो इस टाइम पे हमने अपने आप को ये भी ताला लगाया कि नहीं जी मैंने ये नहीं करना। तो तो फिर क्या होता है, तो फिर गुस्सा आ रहा होता है, तो शदीद टेम्पटेशन आ रही होती है कि कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, किसी से बात कर लूं, गॉसिप कर लूं, किसी की शिकायत लगा लूं। सख्त टेम्पटेशन अंदर से उठ रही होती है। और आप देखिए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि, और हैरान होते हैं कि रमजान में अक्सर लोग इरिटेटेड क्यों रहते हैं, उदासी का शिकार क्यों रहते हैं, इमोशनल हैवीनेस क्यों होती है रमजान में, क्यों बढ़ जाती है। असल ये है कि कोई सेटबैक नहीं है ये। असल बात ये है कि जब नफ्स अपनी फेवरेट कॉपिंग मैकेनिज्म नफ्स का कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, खा लो जाके कुछ, कोई सो लो, जाके घुस जाओ बिस्तर के अंदर, या फिर ये कि सोशल मीडिया उठा लो, या किसी से गप्पे लगा लो। ये फेवरेट कॉपिंग मैकेनिज्म है जब इंसान का नफ्स क्या होता है, परेशान होता है। जब उसकी कोई बुरी आदत सामने आती है तो वो ये अपने आप को या कोई चीज फेस करनी पड़ती है तो उसको करने के बजाय वो इन चीजों के अंदर जाता है। तो असल बात यह है कि जब नफ्स अपने फेवरेट कॉपिंग मैकेनिज्म जैसे खाना, सोना, सोशल मीडिया वगैरह से दूर कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो अंदर छुप के बैठे होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, वो सामने आने लगते हैं। अब ये बहुत कीमती बात है, इसको गौर से सुने कि जब आपने अपने आप को इन चीजों से दूर कर लिया, जो कि रोजा करता है, दूर खाने से दूर कर लिया, नींद कम हो गई, फजूल चीजों से बच गए, तो आखिर में क्या हुआ, आपके अंदर के जो अनरिजॉल्व इमोशंस होते हैं, आपके अंदर के जो मसाइल होते हैं, आपके अंदर की जो सब कॉन्शियस में बैठे आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो ट्रोमेटिक वो जो फीलिंग्स होती हैं वो फिर सरफेस होती हैं। वो कभी गुस्से की शक्ल में, कभी एजिटेशन की शक्ल में, कभी आउट ऑफ ब्लू आप कुछ कुछ भी नहीं फेंकने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, कभी आप रोने लगते हैं, कभी आप जाके बिस्तर में घुसते हैं। मतलब ये चीजें क्या होती हैं, ये सरफेस पे आने लगती हैं। व्हाट वंस वाज मैनेजेबल, वो अभी क्या फील हो रहा है, वो आपको ड्रेन कर रहा है। यूजुअली हमारी लाइफ में कोई भी मसला आता है, नीचे से कोई भी ट्रॉमा, प्रॉब्लम, तकलीफ हमारी बुरी आते हैं, वो जरा सी सामने आती है, कोई बता देता है तो हम फौरन डिस्ट्रैक्ट होके जाके मोबाइल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन रमजान में ये अनकंफर्टेबल चीजें सरफेस होके सामने आती हैं और अभी वो हमें ड्रेन कर रही होती हैं। अभी वो हमें क्या कर रही है, ऐसे जैसे हम हमसे कुछ निचोड़ रही हैं। इसको बुरा ना जाने, यही रमदान है। रमदान का मतलब है रमदा, रमदा का मतलब है हीट, तपिश, गरमाइश, ऐसी स्क्रोचिंग हीट जो पिघला दे किसी चीज को। तो जब आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ते, खाने की डिस्ट्रैक्शन, फोन की डिस्ट्रैक्शन, फलां की डिस्ट्रैक्शन, फलां की डिस्ट्रैक्शन, उन डिस्ट्रैक्शन से आपको रोजा आजाद कर देता है, तो फिर आपके अंदर की जो अनकंफर्टेबल बिहेवियर्स हैं वो सरफेस करके सामने आएंगे। और वो जब आएंगे तो आप परेशान ना हो। इसका मतलब है इसका मतलब है कि आप अपनी खुद आगही के सफर के ऊपर चल पड़े हैं, आप अपने आप को जानने लगे हैं, आप अपने आप को अपने साथ रहना सीख रहे हैं। इसलिए कि आपका जो वो एनेस्थीजिया था वो रिमूव हो रहा है। कौन सा एनेस्थीजिया, ये वाला जो हमारी एडिक्शंस है, हमारी एडिक्शंस हट गई हैं और नीचे से असल असल निकल रहा है। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि अब जब मुझे मेरा असल पता चल रहा है कि मुझे तो हर बात पे ही गुस्सा आ रहा है, मैं तो हर बात पे एजिटेट हो रही हूँ, मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं इस बंदे की बैक बाइटिंग करूं, मुझे तो दिल कर रहा है मैं इस बंदे को काट खाऊं, मुझे तो दिल कर रहा है मैं गुस्से से चीखूं, चीजें फेंकूं, मुझसे कुछ नहीं मैनेज हो रहा। उस वक्त आपने पॉज करना है, उस वक्त आपने ऑब्जर्व करना है, उस वक्त खुद को रिएक्शन से बचाना है, उस वक्त आपको स्टेप बैक करना है। ये इस तपश, ये रमदा है, ये तपश है, ये तपश आपने नफ्स को देनी है कि यू सी यू हैव टू फेस दीज थिंग्स। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है पर तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम्हें चीखने को दिल कर रहा है, चीखना नहीं है, तुम्हें पटकने को दिल कर रहा है, पटकना नहीं है, तुम्हें बैक बाइटिंग करने को दिल कर रहा है, नहीं मैंने नहीं अपने भाई का गोश्त खाना, तुम्हें ये दिल कर रहा है कि मैं शिकायतें लगा लूं, नहीं मैंने अपनी जुबान को शिकायत से बचाना है, मैंने अल्लाह की रजा इख्तियार करनी है कि इंशाल्लाह खैर।
ऐसे में जब ये वाला आयरन मैक्सिमम लगेगी ना उसको, नफ्स को, तो ऐसे में वो डेफिनेट एक दफा वो आएगी, वो तपश, वो गर्मी, वो ये रही रमदा है, यही इंसान को क्या करता है, यही आपके नए हैबिट्स के पैटर्न सेट करता है, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि आपके जो पिछले सेटल्ड पैटर्न्स आपके ब्रेन के अंदर हैं, कि आपको जब गुस्सा आया तो आपने चीखा, आपने, आपको जब आपकी मर्जी से किसी ने उठा दिया तो आपने शोर किया, या आप फोन पे घंटों घुसे रहे थे कि मेरी नहीं चलती, कोई नहीं मानता तो मैं भी डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। तो ऐसे में आप अपने सारी चीजों को बचा के, जब आप अपने इस जगह पे अपने इस अनकंफर्टेबिलिटी को फेस करते हैं, पॉज करते हैं, बुरे रिएक्शन से खुद को बचाते हैं, तो यही चीज आपकी क्या करती है, आपके नए सेट ऑफ, अच्छा फिर क्या, दिमाग कहता है अच्छा पुराने पैटर्न पे तो ये नहीं जा रही, अब ये क्या, ये रुकी हुई है, पॉज किया हुआ है, ये अपने आप को गुस्से से रोक लिया, मतलब ये अब नया नया दिमाग से न्यूरॉन पैटर्निंग ट्रिगर वो हो रही है, वो फायर हो रही है, अब ये सब्र कर रही है, अब ये चुप है, अब यहाँ पे ये पेशेंट है, यहाँ पे ये बुरा रिएक्शन नहीं कर रही, यहाँ पे ये सोशल मीडिया की तरफ नहीं जा रही, यहाँ पे ये स्क्रीनिंग नहीं कर, वो बार बार वो जो स्क्रोलिंग है या रील देखने वाला उस तरफ नहीं जा रही। तो दिमाग मुकम्मल तौर पे न्यू पैटर्न्स डेवलप करेगा, और मोर यू गोना डू दैट, इट इज गोइंग टू बी द सेट न्यू पैटर्न्स। तो ये वो चीजें हैं जिससे ये जो हमारी बुरी आदतें हमारी सरफेस पे आती हैं, खाना, स्क्रीनिंग और नींद कम करने, ये सब चीजें छोड़ने और कम करने की वजह से क्या होता है, जब ये चीजें अनकंफर्टेबिलिटी सरफेस करती हैं, उस वक्त आप अपने पॉज ऑब्जर्व करके आप अपने आप को बुरे रिएक्शन से बचा लें, उस वक्त बचाएंगे तो आपके नए पाथवेज फायर आउट होंगे, और फिर वो नई हैबिट्स, अगर आप इन 30 दिन इसी तरह रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नई नई हैबिट्स 28 to 41 डेज लगते हैं फॉर्म होने में, कुछ लोग 3 वीक्स में कर लेते हैं, कुछ लोग 28 डेज, और मैक्सिमम 40-41 डेज लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो आप लोग एक नई लाइफ को, नए इमोशनल बीइंग अपने आप को इस तरफ डेवलप कर सकते हैं। और मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ गई जब मैं लिख रही थी ना कि ये बुरी आदतें जब सरफेस होंगी आपके अंदर में, जो आपने कंफर्ट जोन्स अपने रखे होते हैं ना, और बुरी आदतें और बुरी चीजों के डिस्ट्रैक्शंस के अंदर दबा के रखी होती हैं, जब ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हटती हैं तो वो सारी चीजें सरफेस पे आ जाती हैं। तो मेरे जहन में ना दाल आ गई, दाल चावल, जैसे हम चावल या दाल भिगोते हैं ना, तो वो जो लाइट लाइट चीजें होती हैं या जो खराब दाने होते हैं वो उठ के ऊपर आ जाते हैं, सरफेस आप आ जाती है ना, सरफेस पे आ जाती हैं, और फिर हम उनको निथार के अलग कर देते हैं। तो यकीन मानिए एग्जैक्ट सेम चीज है कि जब रमजान में हम लोग अल्लाह के लिए भूखा रहते हैं, अल्लाह के लिए कम सोते हैं, अल्लाह के लिए हमने प्लग इन एडिक्शन को छोड़ दिया, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया, तो वो जो चीजें सरफेस पे आएंगी ना, वो इसीलिए आई हैं कि आपकी असल जात, स्ट्रॉन्ग जात आपकी नीचे रह गई है, और जो ये वक्ती बुरी आदतें जो हम अपना के अपनी जात को बुरा कर लेते हैं वो सारी सरफेस पे आ जाती हैं, ताकि हम इनको निथार के गिरा दें। और रमदान यही है कि वो निथार के आपको साफ सुथरा कर दे, वो निथार के वो जो कीड़े वाले जो दाने जैसे दाल पे होते हैं या वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, वो चीजें फ्लोट आती हैं, सरफेस पे आती हैं, इसलिए नहीं कि हम, और अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो एजिटेटेड और गुस्से में रहते हैं, तो उन बेचारों को ये वाली बात, हम अक्सर ये वाली चीज समझ नहीं पाते कि ये सरफेस होंगी, एजिटेशन आएगी, बस इसमें बुरा रिस्पॉन्स छोड़ दें तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अक्सर लोग उस पर फट पड़ते हैं, गुस्सा सबसे ज्यादा, आपको पता है रमदान में लड़ाइयाँ होती हैं, सबसे ज्यादा मसाइल हमारे रमदान में लोगों में पब्लिकली, मर्दों के बाहर अक्सर हो रहे होते हैं और औरतों के भी। तो वो इसीलिए हो रहे होते हैं कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे होते कि चीजें सरफेस पे आ रही हैं, नफ्स तंग हो रहा है और चीजें सामने आ रही हैं, इनको फेस करें। और जब ना फेस कर रहे हो, अगर मसलन किसी का कोई बहुत डीप ट्रॉमा है, वो फेस तो सामने आ रहा है, वो उसको दबा नहीं सक रहा, तो बैठ जाए जाके अल्लाह के पास, अल्लाह को कहें दिस इज व्हाट आई एक्चुअली एम, अल्लाह ताला ये मेरी चीज सरफेस हुई है मेरे से, और इसको मैं अंदर रखे बैठी हूँ, छुपाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट करती रहती हूँ, लेकिन अभी है, मुझसे कॉप नहीं हो रही, मेरी आदत है, मेरा ट्रॉमा है, मेरा अनरेस्ट है, मुझे मुझे अब इसको दबाना नहीं है, मुझे इसको फेस करना है, मुझे फेस करना है, मुझे हील करना है, और मेरे पास हीलिंग कैपेसिटी है नहीं, हीलिंग कैपेसिटी आपके हाथ में है, आप मेरे हीलर हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे हील करें, आप मुझे ठीक करें। तो आपको लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला अनहील्ड छोड़ देंगे? आपको लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे में नहीं मदद करेंगे? खुद को जानने का मौका है ये, खुद आगाही का सफर
स्टार्ट हो सकता है हमारे रमदान के साथ, हमारे अभी के साथ। हमारा जो इमोशनल ईवल है वो सरफेस होके हम उसको बिल्कुल निथार के अलग करके नए पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं, और बेइज़्निल्लाह ताला हमने करने हैं। आप लिखें कि हमने करने हैं। और इस रमदान हमने एक दो काम, बस मैं आखिरी 2-3 मिनट है, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट डाउन, के और इस रमदान में हमने खामोशी को अपनाना है। कम बोलना, कम बोलना, किसी को खुद को एक्सप्लेन नहीं करना, लंबी लंबी जो एक्सप्लेनेशंस देते हुए हम बातें करते हैं, किसी को हम फिक्स करने के लिए जो बड़ी नसीहतें एडवाइसेस करते हैं, वो इसी तरीके से अपना इनर नरेटर, हमारा अंदर क्या सोच रहे हैं, हम बाजू का वही बातें रिपीट करते रहते हैं, ये सारा कुछ कम करना है, कम बोलना है। इसी तरह कम खाना है, पूरा दिन रोजा रख के इफ्तार के वक्त कंट्रोल में रहना है। मुझे याद है, मैं व्हेन आई वाज यंग बिफोर माय मैरिज, तो मुझे याद है मैंने एक रमदान पड़ा खुद को सारों के दरमियान रख के ना, मैंने अपने आप को पूरा रमदान कोई ऐसी चीज, कोई सकील चीज, कोई हैवी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं खाने दी थी जिसमें कोई मतलब चिकनाई का उनसर, ये तली हुई चीजें और ये इस तरह की चीजें या कुछ भी मेरे स्टमक पे हैवी हो। लाइटेस्ट ऑफ द रमदान एंड लाइटेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल मंथ था मेरा, खूबसूरत तरीन। और उसमें मुझे उसकी उसकी ताक रातों में और उसके जो लास्ट रात 10 रातें थी उनके क्याम में मुझे मतलब ये मैं कोई बड़ाई नहीं बता रही, मेरे पास ये आज कुछ भी नहीं है, मतलब पुरानी बात बता रही हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, मेहनत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बदला देते हैं। तो मुझे जो कुरान में पढ़ती थी ना, मैं खोल के कुरान पढ़ती हूँ क्याम में, मैं पूरा पूरा कुरान खत्म करती होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नहीं पढ़ रही, कुरान मेरे दिल पे आ रहा है, मेरी ही आवाज पलट के मुझे बिल्कुल ऐसे मुझे नहीं लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे फीलिंग आती थी मेरे दिल पे कुरान। अब ये कहना है कि दुर नाजिल हो रहा है, मतलब ये जुमला बोलूंगी तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट मानी हो जाएगा ना, लेकिन ऐसी फीलिंग थी कि दिल पे उतर रहा है कुरान, ऐसी फीलिंग थी। तो हमने तो इसको दिल पे ही तो लेना है ना, दिल से ही तो परसीव करना है ना इसको। तो बहुत खूबसूरत है। तो कम बोलना करते हैं, कम खाते हैं, अपने आप को कंट्रोल्ड खाने की तरफ लेके जाएं, और फूड की अच्छी न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ों की तरफ जाएं, लेट ईटिंग से बने। और जो खामोशी में, इस खामोशी ही में जब आप खामोशी अपनाएंगे, कम खाना अपनाएंगे, तो कहीं इस खामोशी में ही आपको अपने दिल की आवाज आने लगेगी। वो जिस दिल को हमने मनो मट्टी, मनो जिदों, मनो बहसों, मनो बोल 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 के कहीं मनो मट्टी तले दफन किया हुआ है ना, गर्दो गुबार तले नीचे दब गया ना बेचारे, जिसकी आवाज हमें कभी नहीं आती, इस खामोशी में और इस कम खाने में और इस प्लग इन एडिक्शन को छोड़ के अल्लाह के लिए चलने में हमें अपने दिल की आवाज आने लगेगी। एंड यू कैन कनेक्ट दैट टू अल्लाह तबारक व तआला अगेन। Remember, whatever you feel resistance towards this month, that is exactly where growth will happen. यानी जिस चीज की तरफ भी आपको ये फीलिंग हो रही है ना रेजिस्टेंस के, हाय ये वाली आदत तो मैं कैसे ही छोड़ूंगी, वहीं से उसी को छोड़ के वहीं से ग्रोथ हासिल करें। ये सबसे कीमती बात है। और ये भी जान लें, आखिरी नुक्ता, कि ये भी जान लें कि नफ्स जो है ना इंटेंशन बनाने में बड़ा तेज है, कि इंटेंशन कर लो। और नफ्स को बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये नियत कर लूं या ये प्लान बना लूं या ये काम लिख लेता हूँ या ये स्केड्यूल या ये प्लानर प्रिंट करा लेता हूँ। लेकिन असल मसला क्या है कि नियतें तो कर लेता है, मगर नफ्स को जो डिसरप्ट नहीं कर रहा होता, हम लोग अमल अमल की तरफ नहीं जा रहे होते, तो नफ्स को प्लानिंग इज फाइन, लेकिन नफ्स सबसे ज्यादा डरता है इस बात से कि मेरे हैबिट्स को डिसरप्ट ना किया जाए। और वो सेफ फील करता रहता है, अगर हम प्लान कर रहे हैं, हम अगर बातें कर रहे हैं तो वो सेफ फील करता है। लेकिन जब उसकी आदतें टूटती हैं, उसका कंफर्ट जोन, नफ्स के कंफर्ट जोन को हम हिला के रख देते हैं, जब ये जो मैंने सारी बातें की हैं, जब हम उसको डिसरप्ट करते हैं ना, तब वो अनसेफ फील करता है, तब वो तंग होता है, तब वो नए जो हमारे, मैंने आपको बताया, राउट्स बनते हैं, नए हमारे फायर होते हैं, पैटर्न्स, हैबिट के पैटर्न्स। तो रमदान asks for छोटी छोटी अनकंफर्टेबल शिफ्ट्स। रमदान चाहता है कि हम शिफ्ट करें अपनी ऐसी हैबिट से, अपनी ऐसी फजूल चीजों से जो बेमानी है, जो हमने वैसे ही पाली हुई है और साथ रखी हुई है, वहां से शिफ्ट करें काम की तरफ, अच्छाई की तरफ, खैर की तरफ। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, नो आर्ग्यू, ये सब अल्लाह के लिए और इखलास और कुर्ब पाने के लिए। और ये सब कुछ नफ्स जो है वो उसको वर्शिप
یا عبادت اس کو رزسٹ نہیں کرتا لیکن ان چینجز کو رزسٹ کرتا ہے. تو ان چینجز پہ انشاءاللہ العزیز اس بار ہم نے کام کرنا ہے. تو جزاکم اللہ خیر، پاسن الجزا. انشاءاللہ العزیز آپ لوگ یہ پرنٹ آؤٹ بھی لیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کل سے ہماری تفسیر کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز. سورہ الاعراف پڑھنی ہے ہم لوگوں نے ڈیٹیل. ہمارے 13 سے 14 سیشن ہوں گے، اور آئی ریکویسٹ کہ ہم ریولیشن آرڈر میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو آف کورس ہم سیرہ کے ساتھ دیکھیں گے سورہ کو اس کے کانٹیکس میں، کہ ہم نظام کی طرف یا مدینہ کی اسٹیٹ قائم کرنے کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام آیات کو کیسے پرسیو کر رہے تھے، وہ کیسے عمل کر رہے تھے، سیدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے لے کے چل رہے تھے. ہم یہ سارا کچھ دیکھیں گے اور ہم اپنے اوپر انشاءاللہ اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو ضرور جوائن کریے. ہم ایک ہفتہ پہلے اسی لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ اینڈ پہ رمضان کے ہم لوگ آف کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو ایوری کل کلاس ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ایوری منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے، ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ، اور پھر ویکینڈ آف ہوگا.